તેમનો કંઈક પ્રાસંગિક સંબોધન શેર કરો. Thank you, CM Manish Bajaj, Group Chairman, Bashir Bhai, my friend, Mr. Mansoori, जो वरसी बोलिस અને આજના અમારા વક્તા વિદ્વાન મિસ્ટર સિદ્ધાર્થ કામતજી, most welcome to you. Our president is coming, so he will deliver the welcome address. પણ તમને સૌને અહીંયા હાજર જોઈને ખૂબ જ આનંદ થયો. તમને સૌને ચેમ્બર વતી અમે અહીંયા આવકારીએ છીએ અને અમારા ગ્રુપ ચેરમેને આ મીટિંગ કંડક્ટ કરવા માટે મનીષભાઈ બજરંગે મીટિંગ કંડક્ટ કરવા માટે જે જહેમત ઉઠાવી છે એની આજે આપણે શ્રી ગણેશ કહીએ છીએ. હું માનું છું કે આજે આ એઆઈ બેઝડ જે કંઈ પણ આપણે પ્રોગ્રામ કરવાનો તે આજે શ્રી ગણેશ કહીએ છીએ. એટલે આપણે હવે સિરીઝ ચાલશે. કદાચ એવું લાગે કે તમે સંખ્યામાં ઓછા છો પણ આપણને સંખ્યા સાથે કોઈ લેવા નથી. ડાયમંડ એક મુઠ્ઠીમાં હોય ને તો પણ કરોડો રૂપિયાના હોય છે. એટલે એને આપણને કોઈ ચિંતા નથી. જે લોકો નથી આવે તે લોકોને એવું થવું જોઈએ કે આજે એમણે આ પ્રોગ્રામ ગુમાવ્યો છે. કારણ કે એમણે જે અમારી સાથે જે પ્રાથમિક ચર્ચા કરી એના પરથી એવું સ્પષ્ટ છે કે આ વિષય પર જેટલા ઊંડા જઈશું તેટલો ફાયદો એમએસએમઈને થનાર છે. એટલું શીખવું જ પડશે. હવે ફરજ પડી ગઈ છે, એ સમય આવી ગયો છે. તો આટલી એક બ્રીફ નોટ સાથે આપ સૌનું ફરીથી સ્વાગત. અને હું બશીરભાઈને કહીશ કે અબાઉટ ધી પ્રોગ્રામ અને ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સ્પીકર એમનો. થેન્ક યુ. Distinguished guests, honorary treasurer શ્રી મિતેશભાઈ, શ્રી મનીષભાઈ and friends. મિત્રો, આપણે પ્રમુખશ્રી આવે એના પહેલા આપણે ફેલિસિટેટનો પ્રોગ્રામ પછી કરીએ અને લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ વી આર હિયર ફોર ટુડે. આપણે શેના માટે આજે ભેગા થયા છે અને આપણી વચ્ચે જે ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ ગેસ્ટ છે અને સ્પીકર છે એમને બી આપણે એમની બી પ્રોફાઇલ સમજીએ. ત્યાં સુધી આપણો પ્રમુખશ્રી આવી જશે અને એના પછી we will go ahead with our program. So friends, this workshop is on smart manufacturing solutions for MSME, is organized by SGCCI AI and Digital Transformation and MSME committees in collaboration with the AI Center of Excellence, Gandhinagar. Our aim is to help MSME learn how to AI, IoT, data can drive growth and competitiveness. I hope today's session proves insightful and helps us all to take a step forward. Friends, આપણી સાથે શ્રી સિદ્ધાર્થ કામતજી છે. It's our privilege, sir, to introduce you. Siddharth Kamatji is leading MSME industry and is engaged in AI Center of Excellence, an initiative by DST, GIL, MEITEI, along with NASSCOM and Microsoft. With vast experience in IoT and digital transformation, Siddharth has guided many MSMEs in adopting AI and smart technology to boost the productivity and efficiency. We are fortunate to have him here to share the insights on our smart manufacturing. Before handing over to Siddharth ji, a small introduction of Siddharth ji. Siddharth leads industry engagement for MSME at AI Center of Excellence, an initiative by Department of Science and Technology, DST, Gujarat Informatics Limited, Government of Gujarat, supported by Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, in collaboration with NASSCOM and Microsoft. He works closely with MSMEs with a strong focus on manufacturing sector to accelerate the adoption of advanced technologies like AI, IoT and analytics. With a solid background in IoT solutions and business development, Siddharth has guided numerous MSMEs through a step-by-step approach to digitalization, helping improve plant productivity, performance and operational efficiency. Siddharth's expertise spans strategic partnership, eco-building system and leading high impact and digital transformation initiatives that drive MSME growth and competitiveness. Please join us and welcome Shri Siddharth Kamatji. Thank you very much, and Pramukshi is always here, so hand over Pramukshi. Good evening everybody. बहुत ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ છે એમએસએમઈ એટલે કે માઇક્રો સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ માટે અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં એમએસએમઈ નું હબ ગણાય
એ ક્ષેત્રની અંદર જેટલા કાર્યક્રમો થઈ શકે એટલા ઓછા છે. ચેમ્બરનો એ પ્રયત્ન છે કે આપણે એ દિશાની અંદર કામ કરીએ. દક્ષિણ ગુજરાતનો કોઈ પણ ઉદ્યોગપતિ કોઈ પણ પ્રકારના જ્ઞાનથી વંચિત નહીં રહી જાય તેની માટેની આપણી આ કોશિશ છે. ચેમ્બર જે કાર્ય કરે છે તેનાથી આપ સૌ પરિચિત છો. એક્ઝિબિશનના માધ્યમ દ્વારા ઉત્પાદકતાઓને સીધું માર્કેટ પૂરું પાડવાનો અમારો પ્રયાસ, ઇન્ટરનેશનલ એક્ટિવિટી દ્વારા 85 દેશોમાં આપણી કનેક્ટિવિટીમાંથી 10 દેશો સાથે વધુ સારા સંબંધો, 300 થી વધુ આ પ્રકારના કાર્યક્રમો, આ ઉપરાંત કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે કે સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વના માટેના કામો અને સરકારની અંદર અસરકારક અને ધારદાર રજૂઆતો, આ કામ આપણે કરીએ છીએ. આજે ભલે ઓછી સંખ્યામાં હોય પરંતુ ગુણવત્તાયુક્ત વ્યક્તિઓ અહીં ઉપસ્થિત હોય તો કદાચ આ કાર્યક્રમનો હેતુ વધારે સારી રીતે સિદ્ધ થઈ શકશે. તો અમારી આ સમગ્ર ટીમની પણ જો પરિચય કરાવો તો અમિતભાઈ શાહ, તેઓ અમારા એસોસિએશન લાયઝન કમિટીના ચેરમેન છે. સીએ મનીષભાઈ બજન, જેઓ એમએસએમઈનું મુખ્ય કાર્યક્ષેત્ર છે અને ખાસ કરીને એમએસએમઈની સમસ્યાના સમાધાનમાં એમની ભૂમિકા બહુ છે. કલેક્ટરશ્રીની અધ્યક્ષતામાં જે કમિટી છે અમારી, એ કમિટીની અંદર મનીષભાઈ સતત ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે અમારા તરફે. હું નિખિલ મદ્રાસી, પ્રેસિડેન્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, અને હું બિઝનેસ કોચ અને ટ્રેનર છું. સીએ નીતિશભાઈ મોદી અમારા માનદ ખજાનચી છે અને તેઓ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વ્યવસાયની સાથે સંકળાયેલા છે. અમારા રિપ્રેઝન્ટેશનનું બહુ મોટું કામ તેઓ કરે છે. અને ભાઈ શ્રી બશીર મંસૂરી આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના જમાનાની અંદર બહુ મહત્વનું કાર્ય અમારા માટે કરે છે. તો કામત સાહેબ અહીં પધાર્યા છે. સિદ્ધાર્થભાઈ, AI સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ગાંધીનગરમાં અમારા ઘણા મિત્રોએ મુલાકાત લીધી છે અને ત્યાંનું આખી ચકાચોંધથી આકર્ષાઈને અંજાઈને અમને થાય કે દુનિયા આવી હોવી જોઈએ. તો આવા કામત સાહેબનું પણ ચેમ્બર વતી સ્વાગત કરીને આનંદ થાય છે. હું એમને પુષ્પગુચ્છથી અને સ્મૃતિગુચ્છ આપું છું. તો બશીરભાઈ, આપણે કમર સાહેબને સીધો મંચ પૂરો પાડીએ. કમર સાહેબ, तो मैं उस तरफ आता हूँ. तो बेसिकली दिस AI Center of Excellence is an initiative of Government of Gujarat. Okay. तो ये हमारे लिए बना है ताकि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें. हेलो, यस. So it's an initiative of Government of Gujarat, supported by Minister of Electronics from center, and respective state government is been providing its support. So ऐसे 4 series है across India, one in Gurgaon in north, south में बेंगलोर में है, east में अहमदाबाद में है, गांधीनगर, and west में गांधीनगर में, east में विशाखापट्टनम. So strategically these 4 series are working for Digital India Initiative, started in 2016. तो आज हम सब AI, IoT, स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये सब सुन रहे हैं. तो असल जिंदगी में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में MSMEs के लिए ये सारे टेक्नोलॉजी अपने लिए कैसे हेल्पफुल रहेंगे, वो हम हम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं. इंडिया को स्मार्ट बनाना है और इंडिया को स्मार्ट तब बनाएंगे जब हम स्मार्ट बनेंगे. सिर्फ मोबाइल स्मार्ट बन रहे हैं, वैसे हमारे फैक्ट्रीज भी स्मार्ट बननी चाहिए. तो असल हमारे ऑपरेशंस में कैसे AI, IoT, स्मार्ट सॉल्यूशंस कैसे काम कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं. वेरी इजी वे में मैं ये प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ. सो वेलकम टू द एरिया ऑफ
manufacturing, smart manufacturing, which is called Industry 4.0. तो असल में इंडस्ट्री 4.0 क्या है? तो ये इंडस्ट्री 4.0 इज ओके, इट इज लाइक हमको जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो दैट टाइम लाइक वी यूज्ड टू यूज वाटर एंड स्टीम. तो उस वक्त हम ये इसका इस्तेमाल करके वाटर और स्टीम का इस्तेमाल करके हम अपने ऑपरेशंस कर देते हैं, मशीन रन कर देते हैं. देन इन 1890s इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो तब 2.0 आ गया पिक्चर में. तब हमने जो भी अपने कन्वेयर बेल्ट्स आ गए, तो वहां पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन आ गया पिक्चर में. तो जो भी रिपीटेटिव और रिपीटेटिव टास्क जो थे वो हमने ऑटोमेट कर दिए. इससे ह्यूमन एरर्स कम होने लग गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. देन केम इंडस्ट्री 3.0 1970s में, जब कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, चिप्स ये पिक्चर में आ गए. तो ऑटोमेशन केम इनटू द पिक्चर, एंड जब ऑटोमेशन आ गया तो स्टैंड अलोन जो रोबोटिक आर्म्स है वो वो इंस्टॉल होने लग गए. आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है दैट इज 4.0. तो 4.0 इज लाइक इट्स अ साइबर फिजिकल सिस्टम्स के साथ हम काम करते हैं. तो साइबर इन द सेंस इंटरनेट, और फिजिकल सिस्टम्स मतलब अपने मशीनरीज. तो ह्यूमन मशीन का जो इंटरफेस है वो हम अच्छे से और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है. तो दिस इज द ब्रीफ ऑफ लाइक इंडस्ट्री 4.0. 4.0 सब लाइक देयर आर अगेन बाकी के देश में 5.0 भी आ गए, बट स्टिल वी आर अभी जब स्मार्ट टेक्नोलॉजी जब बोलते हैं हाँ हमने ऑटोमेशन कर लिया है, रोबोटिक डाल दिया, बट दैट इज अगेन 3.0. तो दिस इज द bridge, like this is the difference, like we need to understand कि वाकई 4.0 क्या है. तो 4.0 मतलब आज का जमाना है जहाँ पे स्मार्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं. तो हमने सीओई में एक सर्वे किया था जिसमें 70% वेयर लार्ज इंडस्ट्रीज और 30% वेयर एसएमईज, ये 300 कंपनीज का सर्वे किया था. तो हमने ये फाइंड किया था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे फॉल इन द फर्स्ट 2 सिनेरियोस. ये नहीं दिखता क्या? तो लगभग 60% ऐसा पॉपुलेशन है जो फर्स्ट 2 स्टेजेस में लैक करता है. आइदर दे आर न्यू, no but not adopted. So like we basically ask them questions. Do you know what is your understanding of smart technology? तो उसमें से 60% लोगों ने कहा कि हम नए हैं, हमें पता है पर हमने अडॉप्ट नहीं किया. और क्वेश्चन ये था कि हमने रिसेंट अडॉप्ट किया है. और चौथा था कि अडॉप्टेड एंड रियलाइज द बेनिफिट्स. तो यहाँ से हमको ये दिखने चालू हुआ कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये फर्स्ट 2 में ही लैक कर रहे हैं, मतलब है 2 स्टेजेस में. पर जो एसएमईज जो है ना वो फर्स्ट से लेकर सिर्फ 3rd स्टेज तक ही है. जो 4th स्टेज में जाने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है. तो लाइक अगेन, but the large enterprises like they know what smart technology is, what it can benefit them. तो अगर जैसे आप देखने आ जाते हो, SMEs का कम होते जा रहा है, and largest they have adopted because they have like allocated budget. वो budget allocation होता है, तो काफी उनको एक awareness होता है regarding the smart solutions. But SMEs are failing to understand this, so that's why government is trying to make this SMEs more and more adopted. चालू किया.
नहीं ये आगे जाता है पर ये हाईलाइट नहीं होता है ना, ये मुझको चाहिए था। तो again here we see like the large companies they have adopted and they are already getting benefit out of it, but SMEs they are still failing for adoption of the smart technologies. तो कई सारे ऐसे challenges होते हैं हमारे SMEs में, तो वो challenges कौन से वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट होता है लेबर प्रॉब्लम। एसएमईज को पता नहीं रहता है कि मेरा वर्कर कब आया, कब गया, शॉप फ्लोर पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, इसका आइडिया नहीं रहता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और नए ट्रेनिंग नहीं कर सकते हम, वो कॉस्ट आ जाता है, पिक्चर में कॉस्ट आ जाता है, सो अगेन दे फेल टू ट्रेन देम फॉर न्यू वन। And many of the SMEs they don't understand like their plant का efficiency कैसा है। In fact, workers का भी productivity और efficiency they can't even measure. So that is the problem what they are facing. This is the labor issue. Second one is the operational cost. तो जब नई इंस्टॉलेशन हो जाती है कंपनी की प्लांट की, मशीनरीज नए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब सही जाता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है देयर इज ऑफ कोर्स गोइंग टू हैव अ वेयर एंड टेयर। सो देयर अगेन एनर्जी इज अ मेजर चैलेंज। तो ज़्यादा एनर्जी भी एक इट्स अ बर्डन, एनर्जी कंजम्पशन उसका कॉस्ट आता है, so it becomes a burden. So energy is one of the concern for the SMEs. Then comes the efficiency and the productivity. So here, like this was I am saying कि SMEs को पता नहीं है कि उसका प्लांट का प्रोडक्टिविटी कितना है। अभी मुझको लगता है कि मेरा इतना प्रोडक्टिविटी है, I am utilizing all my resources in machineries optimum. तो मेरा भी लगता है कि मेरा प्रोडक्टिविटी is like 90%. Just because like he is involved in the production and he is like thinking like okay my productivity is this kind of thing, but अगर मुझको नया ऑर्डर लेना है तो that time what comes in the picture कि हाँ मुझको नई मशीनरीज लगवाने हैं, right? तो अगेन वहां पर अगर मुझको ऑन रिकॉर्ड अगर पता चलता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है और इफिशिएंसी क्या है, तो उस वक्त मैं एक राइट डिसीजन ले सकता हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव अ गुड डेटा। सो ये डेटा वगैरह ये एआई के थ्रू, स्मार्ट सॉल्यूशंस के थ्रू हमें मिलते हैं, बट ये फाइंड आउट करने के लिए देयर आर वेरियस सॉल्यूशंस टू अंडरस्टैंड लाइक वेदर टू टेक अप द न्यू प्रोजेक्ट एंड फॉर दैट प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग द बेस्ट मतलब सर्विस मुझको नया इंस्टॉलेशन करवाना है, वो आगे कैपिटल बढ़ गया, तो ये कई सारे मुद्दे उसमें आ जाते हैं। तो टू अंडरस्टैंड इट, टू गेट अ क्लियर पिक्चर, सो द एसएमई शुड अंडरस्टैंड लाइक व्हाट द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इट इज लाइक कितना है, क्या है, वो पता रहना चाहिए। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अगेन द थिंग इज हम अपने एक्सपीरियंस बंदों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अगर मशीन ऑपरेटर नहीं आया तो खत्म, क्योंकि उसका अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है मेरे प्लांट के अंदर, उसको सब पता है। मैं एज अ ओनर मुझे नहीं पता, बट ही इज एक्सपीरियंस, ही इज नो एवरीथिंग। वो वैल्यू सेट कर देगा, हाँ चल रहा है, बट क्यों सेट किया, उसके पीछे कुछ रीजन है क्या सोचकर आपने ये सेट कर दिया, कम किया तो क्या होगा, ज्यादा किया तो क्या होगा। सो ऑल द डिसीजंस आर लाइक नॉट टेकन लाइक डेटा ड्रिवन, कोई डिसीजन नहीं है जस्ट ऑन लाइक हाँ चल रहा है, ये ऐसा ही चलेगा इसलिए चल रहेगा। वो हमारे पुराने टाइम में एक बड़ा टीवी आता था, तो अगर पिक्चर ऊपर से हम क्या करते थे, ऐसा करते थे,
रिमोट नहीं चलता तो ऐसा ऐसा करते थे, खट खट करना वो चालू हो जाता है। बट ऐसा क्यों किया आपने? आप ये छोटी छोटी चीजें है, अब बड़ा अगर मशीन मेरा सीएनसी है उसको क्या करोगे? सो दैट इज लाइक अ प्रॉब्लम कि हम इजीली हम कोरिलेट कर पा रहे हैं कि क्या सोचकर आप कर रहे हो। वी डोंट हैव वैलिड रीजंस फॉर देम। Thirdly, fourth one is operations. Frequent breakdowns होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एक रहता है। ब्रेकडाउन हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्शन लॉस हो गया। ये तो सेकेंडरी हो गया, पर डायरेक्ट वुड बी मशीन को ठीक करना है, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट मतलब प्रोडक्शन लॉस हो गया। सो ऐसे इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉसेस होते रहते हैं ऑपरेशंस में। देन फिफ्थ कम्स डेटा एंड रिकॉर्ड्स। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहला चरण एआई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो भी बड़ा बड़ा नाम फैंसी टर्मिनोलॉजी हम जो सुनते हैं, एवरीथिंग इज हियर, डेटा एंड रिकॉर्ड्स। हम कुछ ना कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन होना ही चाहिए जो कि डिजिटलाइज कर सके हमारा रिकॉर्ड्स। तो ये सीन क्या होता है, हम बहुत अच्छी तरीके से डेटा रिकॉर्ड करते हैं, एक अच्छा फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में अपना रिप्रेजेंटेटिव जाके सब नोट डाउन करता है, वो करेगा, वो फाइल उस दिन का रहेगा, ऐसा पूरा महीने का भर देगा और फाइल बंद करके अलमीरा में रख देगा। उस डेटा का क्या करना है, क्या उससे एनालिसिस करना है, कुछ नहीं पता। मुझे अगर पिछले महीने का और इस महीने का अगर एनालाइज करना है, वो करने के लिए भी मुझको एक अलग बंदा रखना पड़ेगा जिसको एक्सेल होता है। अब बंदा एक्सेल में डालेगा कब, उससे एनालिसिस कब करेगा, इसको टाइम जाता है। अगेन पिछले साल का कितना था, इस साल का कितना है, अगले साल कितना करना है। सो दैट इज लाइक कंप्लीटली वर्क ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड्स। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट जस्ट वी आर वेल मेंटेनिंग, सब बुक्स में होता है, अच्छा खासा कबड़ भरा हुआ है, बट क्या उससे क्या मिलेगा मेरा अपने को? कुछ डिराइव हुआ ही नहीं है। क्या एनालिसिस निकालो उससे? कुछ नहीं निकला। सो ये सारे प्रॉब्लम्स है एमएसएमईज के, मेजर प्रॉब्लम्स। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब हम फेस करते हैं तो इसको सॉल्यूशंस भी है, पर सॉल्यूशंस लेने के लिए क्या होता है कि हमारा जी कतरता है नया नया चीजें अडॉप्ट करने के लिए। तो वो कौन से रीजन है? तो ये रीजंस है। Acquiring digital skill is difficult and not much of use. ये हमारा पहला स्टेटमेंट ये होता है कि क्या जरूरत क्या है, वो बहुत हार्ड है। हम कैसे सीखेंगे? हमको कोडिंग नहीं करना भाई, हमको वो चीज नहीं, हमको बस सॉल्यूशन चाहिए। हमने अभी यूपीआई से अभी पेमेंट करना चालू कर दिया। कितना लोग यहाँ पे आईफोन यूज करते हैं? इतना कॉम्प्लेक्स फोन आप यूज कर रहे हो, वो यूज करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक स्मार्ट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करके उससे फायदा लेना इज दैट इज अगेन अ चैलेंज फॉर अस। सेकंड वन इज लाइक आई डोंट हैव टाइम एंड रिसोर्स टू वर्क ऑन न्यू इनिशिएटिव्स। बराबर हमारे पास टाइम नहीं होता है। एमएसएमईज क्या करते हैं, सुबह उठते सब काम करते, वन मैन आर्मी रहते हैं, सब कुछ काम करेंगे और रात में सो जाएंगे खत्म काम करके। सो टाइम नहीं है। अगेन ये एआई आईओटी से लार्ज फैक्ट्रीज के लिए छोटे वालों को आरओआई नहीं दिखता। सो दीज आर लाइक अगेन अप्रेंशन, ये ऐसे ही रहता है। अगेन सब कुछ सही चल रहा है, सब एक नंबर फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब सही चल रहा है, तो फिर नया हम बढ़ेंगे कैसे? दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो ये एक हो गया। एंड आई डोंट लाइक आई हैव नॉट सीन एग्जांपल फॉर एमएसएमई। अगर हमने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, खुद से नहीं किया, तो हम बाहर देखेंगे भी नहीं। तो दिस इज अगेन अप्रेंशन। एंड देन लाइक लास्ट वन जो मैं हर जगह सुनता हूँ, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन डिजिटलाइजेशन थ्रू रोबोटिक सिस्टम। तो हमने वो देखा रोबोटिक कौन सा है, इंडस्ट्री 3.0। तो इंडस्ट्री 3.0 से आप डायरेक्ट 4 पर हमने कर दिया। सो दैट इज अगेन मिसकंसेप्शन हो जाता है। सो
basically these are like the apprehensions, and let us see like automation और digitalization में फर्क क्या है. Automation क्या है? It's more focuses on reducing workforce. Automated tasks मतलब जो repetitive tasks थे वो हमने robotic arm डाल के वो automate कर दिए. Saves time and improves quality, right? And replace manual tasks with machines. This is automation. Digitalization क्या होता है कि integrates the department. So I was having word with sir like कि digitalization क्या कर सकता है? सर आपका सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है. कैसे कनेक्टेड होते हैं बताता हूँ. प्रोडक्शन वाले को पता चलता है कि मेरे पास इन्वेंट्री कितना है. इन्वेंट्री वाले को पता चलता है कि इससे कितना प्रोडक्शन हो सकता है. और जो डिस्पैच वाले को पता चलता है कि मुझे इतना सारा चीज डिस्पैच करना है. अब जब पीओ जनरेट होता है किसी भी कंपनी को तो उस वक्त वर्क ऑर्डर जो भी मिलना है उसके लिए उसको तभी के तुरंत बताएगा कि मेरे पास स्टॉक कितना है, उससे कितना चीजें बनेगा. अगर कुछ कम होने जा रहा है तो उसको उसी टाइम पर अलर्ट मिलेगा. फाइनेंस वाले को उसके अलर्ट्स मिलेंगे. तो ये जो सारे जो डिपार्टमेंट्स है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. सो दैट इज काइंड ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिजिटलाइजेशन. Then it is mostly focus on operational efficiency. ये जो operational challenges रहते हैं इसको reduce करना है. So it focuses on this. And the third one is improves process and decision making. अगर मेरे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, टाइमली रिपोर्ट्स आ रहे हैं और अलर्ट्स भी आ रहे हैं, तो आई विल बी गेटिंग अ क्लियर पिक्चर कि डिसीजन मेकिंग मेरा अच्छा हो जाएगा. आई बिलीव एवरीवन हियर इज सम और द अदर वे एंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज. एमएसएमईज में मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग हैं? हाँ तो बोलिए. ओह गुड. आप एक सब बता दीजिए, एक गलती डिसीजन मेकिंग कितना बड़ा नुकसान कर सकती है? पूरा का पूरा. आपका यही बताता हूँ कि एक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में सामान सही हो गया और हम वैसे ही कर रहे हैं, डिसीजन दे दिया चलो चालू है, इट्स गोइंग फाइन. हमने सब कुछ कर लिया, प्रोडक्शन हो गया, डिस्पैच भी हो गया, कस्टमर के पास भी चला गया. और जब मैं रिकॉर्डिंग निकालता हूँ 8-15 3 महीने का क्वार्टरली जो भी रिकॉर्डिंग का हम डेटा एनालाइज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो बना हुआ था इट वाज अ डिफेक्टेड. और जब हमको ये कब पता चलता है? जब वो कस्टमर वहां से चिल्लाता है, तब हम ये पूरा ये पीछे गोइंग बैक, ये बैकवर्ड पूरा प्रोसेस चालू कर दे. क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ. तो टाइम निकल गया है. अगर मुझे उसी वक्त अगर अच्छा पता चल जाता इसमें कुछ तो डिफेक्टेड है, तो हम उसी वक्त तुरंत अच्छा डिसीजन ले लेते. डिसीजन इन द सेंस करेक्टिव एक्शंस ये हम ले सकते थे. तो दैट इज काइंड ऑफ improves process and decision making. It enables human and machine interaction. तो how it enables, तो वो एक अगला सॉल्यूशन से मैं दिखाता हूँ. I hope like you are enjoying. ये जो सेशन है ना, ये थोड़ा कैसा, ये काजू बादाम खाने जैसा सेशन रहता है. थोड़ा पचाने में बहुत तकलीफ होता है. Yes, but it is important. Believe me, MSMEs, if we don't like adopt smart technology in near days, like कुछ period में अगर हमने implement नहीं किया, believe me, बहुत हमारा मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि we will be not able to match the market price and our production price. तो जैसे नोकिया पीछे जाता है वैसे will be washing out from the market. So that's why like government of India came with this initiative, Digital India initiative. तो चलो आज हम कुछ वीडियोस देखते हैं.
तो आप एमएसएमईज हो सब, तो ये सब देखा जाए तो ये आपका एक फैक्ट्री है। मैनुअल डेटा, प्रोसेस मैनेजमेंट, इन्वेंटरी, मशीन फेलियर, एनर्जी कॉस्ट, प्रोसेस प्रोडक्ट क्वालिटी इशू, लो मार्केट रीच, रिमोट कस्टमर एंड एक्सपोर्ट सपोर्ट, वर्कर हेल्थ सेफ्टी, कंप्लायंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ये आपका पूरा फैक्ट्री का एक सिनेरियो है। तो इसके कौन से सॉल्यूशन है ये देखते हैं। तो फर्स्ट कम्स द पेपर टू डिजिटल। फर्स्ट स्टेप फॉर डिजिटलाइजेशन, ये क्या करता है, आपका जो भी लिखा पढ़ी का काम है वो सब डिजिटलाइज कर देगा। कुछ भी लिखा पढ़ी का काम है, पेपर पूरा निकल जाएगा, सब डिजिटलाइज हो जाएगा। इसमें क्या है, हाँ डेटा लेने के लिए, एंट्री करने के लिए मुझे आदमी चाहिए। So there is this manual intervention to get this data to fit in your hand holding devices like tablet or phone. आप अभी तो एंड्रॉइड फोन में ये ऐसे आ जाते हैं एप्लीकेशन, आप डाल सकते हो। तो इसमें क्या होता है सीन कि डेटा मैनिपुलेशन की चांसेस कम हो जाते हैं। भले मेरा वैल्यू 130 दिखा रहा है और मुझे पता है कि टॉलरेंस 110-90 चलता है, लिख दो 110। क्या हो जाता है, मेरा टेक्निकल टेक्सटाइल वाला मेरा यूनिट है, अगर मैं 110 के 130 जो वैल्यू दिख रहा है मुझे वेट उसका जीएसएम, वो 110 कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। अगर मेरा जीएसएम ज्यादा हो गया, कस्टमर इज गोइंग टू बी इन अ प्रॉफिट एंड आई एम गोइंग टू गो इन लॉस। कम हो गया तो भी लॉस है, ज्यादा हो गया तो भी लॉस है। सो ये ऐसा डेटा मैनिपुलेशन नहीं होता है। सो दिस इज द फैंटास्टिक सॉल्यूशन। जो डेटा दिखता है वो हम लिख देंगे इसमें एंड ये सब डैशबोर्ड वही के वही दिख जाता है। दिस इज द रियल टाइम जनरेटेड रिपोर्ट्स। आप कभी भी रिपोर्ट देख सकते हो, नो नीड टू पुट वन रिसोर्स टू एनालाइज दिस डेटा, पूरा आपको दे देगा। एंड इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, कल्चरल शिफ्ट हो जाता है, द वर्कर्स फील लाइक हाँ कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं। एंड अगेन एक 20% ह्यूमन का जो टाइम है वो सेव हो गया है ये इम्प्लीमेंट करने के बाद। दैट्स व्हाट वी हैव गॉट इट। तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इन्वेंट्री सीन रहता है कि मुझको इन्वेंट्री ट्रैक करना है, ट्रेस करना है। सो विद द यूज ऑफ आरएफआईडी, बारकोड, क्यूआर कोड, यू कैन लिटरली मैनेज योर इन्वेंट्री। तो यहाँ पे सूरत में कोई एम्ब्रॉयडरी से होगा, ओके। तो एम्ब्रॉयडरी लाइक आई एम जस्ट थ्रोइंग अप दिस केस, ये कैसे काम कर सकता है। एम्ब्रॉयडरी कैसा होता है कि मेरा एक बना हुआ है, आया लाइक सेमी फिनिश्ड ही आया, मैं वो बाहर दे रहा हूँ, वो एम्ब्रॉयडरी करके वापस दे देगा मुझे, ओके। अब वो लॉट में ट्रैक कैसे करूंगा बताओ, वो पूरा दिमाग खराब हो जाता है उससे। सो दैट टाइम दिस सॉल्यूशंस कम्स इन द पिक्चर। जो क्यूआर कोड, बारकोड, जो आप अगर जो भी सैंपल जा रहा है या फिर जो भी प्रोडक्ट जा रहा है, अगर उसके ऊपर हमने पेस्ट कर दिया तो उसका डेटा आ जाता है। सो द ओनली थिंग वुड बी वी नीड टू जस्ट ट्रेस विद द गन्स एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द ट्रैक ऑफ दैट। ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में हो जाएगा। अगर आपका ये देखिए आरएफआईडी का है, मतलब यहाँ से वहां जा रहा है तो उसका ट्रैकिंग हो जाएगा। एंड द थिंग इज, अगर आपका कोई मशीन मैन्युफैक्चरर हो जिसमें कई सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हो, इन्वेंट्री में स्टॉक कौन से बैग में कितना है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट वो सब गन देगा और सब वो रैक से लेकर जाएगा, ताकि उसको कौन से बॉक्स में वो पार्ट कहाँ है वो भी दिखेगा और उसका नंबर भी दिखेगा। सो इसमें काम बहुत कम हो गया।
जो डिफिकल्टी लेवल थी वो पूरी रिड्यूस हो गई। अगर आपका मशीन, आपका फैक्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, एंड मेरा फोर्कलिफ्ट कहीं तो कोने में है, अब मुझे पता नहीं है कि मेरा फोर्कलिफ्ट कहाँ है। आई एम टॉकिंग रियली अबाउट लाइक अ बिग 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 कंपनी, ओके। तो उस वक्त मेरा एसेट भी मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मेरा कौन सा एसेट कहाँ पर है। सो दीज आर लाइक द सॉल्यूशन कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइल्ड पेरेंट रिलेशन अगर करना हो, दैट आल्सो कैन बी डन थ्रू दिस। तो जो अभी IoT बोलते हैं, मशीन मॉनिटरिंग, सो IoT इज अ वेरी फैंसी टर्मिनोलॉजी। हम यहाँ के सब लोगों ने IoT सुना है, इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और क्या काम करता है, बिकॉज इट इज लाइक मशीन हेल्थ कंडीशन मॉनिटरिंग। अगर ये मतलब ये सॉल्यूशन कैसा काम करता है, ये दोनों तरफ से काम करता है। अगर कोई मशीन है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो वो भी बताएगा, और मेरा मशीन का प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी वो भी बताएगा। सो इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ कि मेरा मशीन अगर किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच हो जाता है तो मुझे रियल टाइम अलर्ट्स मिलेंगे, और ताकि मैं वहां पे करेक्टिव एक्शंस ले पाऊंगा। वाइब्रेशंस ज्यादा हो रहे हैं, कम करने के लिए मुझे वहां पे करेक्टिव एक्शंस ले लूंगा मैं। मशीन बंद हो गई, क्यों बंद हो गई, उसका रूट कॉज क्या था, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने, ये हमने यहाँ सूरत में इम्प्लीमेंट किया था, लाइक 10% एनर्जी कंजम्पशन कम कर दिया था, एंड 10% मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। ये जब मैंने एक फैंटास्टिक यूज केस हमें आया था। सो ड्यूरिंग गुणवत्ता यात्रा व्हेन वी वर एसोसिएटेड विद दिस QCI पीपल, तो मैं मोरबी में गया था। तो मोरबी किस लिए जाता है? सिरामिक वालों का एनर्जी कॉस्ट कितना ज्यादा है क्या बिल? मैं शॉक हो गया, लाइक लिटरली उनका महीने का 1 करोड़ आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और LNG 2 करोड़। मतलब जो बंदा अपने फैक्ट्री का जो एनर्जी कॉस्ट है, लाइक ही इज पेइंग 3 करोड़ फॉर जस्ट एनर्जी कंजम्पशन। तो देयर यूज केस वाज लाइक, सर अभी हमें ना हमारा सिरेमिक का तो पैसा नहीं बढ़ा सकते, आप जो भी करना है हमें इंटरनल करना है। देयर इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप सिरेमिक का प्राइस नहीं हाई करोगे, जो भी करना है इंटरनल करना है। तो दैट टाइम ही सेड लाइक मेरा इतना बड़ा प्रोसेस है, मैं कहाँ पे मेरा कॉस्ट सेव करूं बताओ। जो बंदा 3 करोड़ महीने का दे रहा है, साल का है 3000 कितना 36 करोड़ ही इज पेइंग जस्ट लाइट बिल एंड एनर्जी बिल LNG का। 10% भी अगर वो कॉस्ट सेव करता है, कितना बड़ा 3.5 करोड़ तो यहीं पे कम हो गया, राइट? सो दैट काइंड ऑफ डिफरेंस इट मेक्स, एंड दैट इज अ प्रॉफिट अगेन। सॉल्यूशन क्या है? इतना सा IoT लगाना है, दैट्स इट। एंड और एक हो गया कि मशीन मैन्युफैक्चरर था, उन्होंने ये कॉस्ट मतलब एक मशीन के साथ ही IoT दे दिया। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके मशीन काफी सारे ब्रेकडाउन हो रहे थे, तो जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो उसका कॉस्ट ज्यादा था, बहुत सारे लोगों को भेजना पड़ता था फील्ड पर। अब ऐसा तो है ही नहीं कि मेरा राजकोट का बना है और मशीन सिर्फ गुजरात में ही घूमने वाला, ऐसा नहीं है। पता चला वो बाहर भी गया होगा, कोलकाता गया, हरियाणा में गया, नीचे कोयम्बतूर में गया, ये आने जाने का कितना ज्यादा कॉस्ट हो जाता है। तो ही said like we need to implement such kind of solution जिसमें मेरे आफ्टर सेल सर्विस में कम आना चाहिए। तो that time he installed this IoT solution with his machineries and he gave it to the customers। और खुद बताते थे, सर आपका मशीन अभी बंद हो जाएगा। ये कैसे बताते थे? They used to send this alerts। आपका बिजनेस व्हाट्सएप हो या फिर ईमेल हो, वो अलर्ट्स आ जाते हैं।
सो अगर मैं एक एमएसएमई हूँ, मुझे तो किसी भी हालत में मशीन नहीं बंद करना है। अगर बंद पड़ेगा तो मुझको पता है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इसलिए वो खुद से करेक्टिव एक्शंस लेने चालू हुए। इन दिस वे द कंपनी like reduced like 40%, मतलब this is a significant reduction in after sales service cost, ये use case है। Again eraser manufacturer save like energy cost, एक हो गया। Not necessary कि इसको स्मार्ट ही मशीन चाहिए, लेगेसी इक्विपमेंट रहा तो भी हम सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। So these are like very easy solutions, okay? So high energy cost which we studied right now. ये है कंप्यूटर विजन फॉर इंस्पेक्शन। तो कंप्यूटर विजन ये चीज है कि जो हम आंखों से कर सकते हैं वो कैमरा करेगा, पक्का करेगा, और वो भी एकदम एक्यूरेटली करेगा। अगर मैंने एक डिपार्टमेंट है मेरा क्वालिटी कंट्रोल का, वो लोग आ जाते हैं सुबह, अच्छा मूड रहता है, अच्छे से काम करेंगे 2 बजे तक, फिर खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद क्या होता है, चल रहा है काम, चलने दो, एंड द वे लाइक दे वर्क हो जाती है गड़बड़, एंड इट्स ह्यूमन नेचर, यू कांट डिनाई इट। इफ आई टेल यू like my products are 100% quality check, अगर मैं एरोस्पेस को और डिफेंस को अगर मेरा प्रोडक्ट में दे रहा हूँ तो उसको तो 100% प्रिसिजन चाहिए चाहिए। नहीं किया तो देखा ना अभी क्या हो गया आपने अहमदाबाद में, वो जो धुआं उड़ रहा था ना, वो मेरे ऑफिस से दिख रहा था। That big it was, like from Gift City to, मतलब वो पूरा 30 किलोमीटर दूर है। So that was like looking from my office. So ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो then we need a 100% quality check. अगर मैं बताऊं कि मेरा हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी चेक किया and I have report for this, उनको भी अच्छा लगेगा, and that time you have a upper hand to charge them premium. ये एक सीन हो गया। Again, anybody here from FMCG? FMCG में अगर कोई प्रिंट है, कोई लेबल है, वो जा रहा है, कर रहा है, प्रिंट हो रहा है, गलती हो गया है, वो कब पता चल जाता है? कुछ बैच होने के बाद। और वैसे भी हम सैम्पलिंग टेस्ट ही करते हैं, तो उसी वक्त कुछ ये डिफेक्ट दिखाया देगा। मेरा टैबलेट मैन्युफैक्चरर हूँ मैं, एक टैबलेट ब्रोकन निकला, टैबलेट ही नहीं है अंदर, या फिर एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, तो उसके ज्वेलरी पर जो ज्वेल्स का जो पोजीशनिंग है और जो प्लेसमेंट है वो सही से किया है कि नहीं किया है, वो सब कुछ बता देगा। तो ये एक कंप्यूटर विजन बोलते हैं इसको, इसमें एआई रहता है। ये सारे जो सॉल्यूशंस है ना, इसमें हर जगह एआई का थोड़ा लेयर लगा हुआ रहता है, एक ही लगाते ऊपर एआई का, तब ये जाके आपको मतलब रिजल्ट्स देते हैं। इसको कहते हैं AR/VR सॉल्यूशन फॉर प्लांट एंड प्रोडक्ट्स। अभी सब लोगों को एक्सपोर्ट करना है, सब लोगों को अच्छा बिजनेस करना है, तो like when we tell any of the customers like हमारा ये प्रोडक्ट है, ऐसा वैसा सब अच्छा खासा बनाते हैं हम, we need to sir have a factory visit, वो आएंगे फैक्ट्री विजिट करेंगे। What if I say कि your customer is sitting overseas, श्रीलंका में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, क्या करेगा? या फिर आप किसी एक्सपो में गए हो बाहर, and that time again वो बोलेगा कि हाँ वो seriously you have such kind of good products, we need to visit your factory। आपने उसी वक्त अगर आपका फैक्ट्री विजिट करवा दिया तो कितना अच्छा होगा। So ये AR/VR सॉल्यूशन होता है जहाँ पे आपकी प्लांट की कैपेसिटी,
आपका प्रोडक्शन कैसा होता है, आपकी मशीनरीज कैसे, इसका कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी इफिशिएंसी क्या है, वो सारा कुछ आप दिखा सकते हो। आप सिरेमिक में हो, आप ज्वेलरीज में हो, अगर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं फॉर लाइक फार्मास्यूटिकल, ये सारे लोग आ गए मुझको आपकी फैक्ट्री देखनी है, मैं सारों को नहीं ले जा सकता, कंटेमिनेशन हो जाएगा भाई। तो उस वक्त यह समय टूर करा सकता हूँ। इफ आई एम हायरिंग अ न्यू वर्कर, वो अंदर शॉप पर में जाके क्या करने वाला है, अगेन क्या करने वाला है, तो उसके लिए ट्रेनिंग इससे हम दे सकते हैं कि आगे जाके तो क्या करने वाला है। इफ और एक सीन क्या है, हमारे सारों के पास मशीन होता है, कुछ कुछ मशीन्स इंपोर्टेड होते हैं। मशीन अगर ब्रेकडाउन हो गया, एक इंजीनियर को बुलाने का और जाने का कितना कॉस्ट रहता है, बहुत ज्यादा। अगर मैंने बोल दिया कि एक ऐसा सॉल्यूशन है इसमें कि जो मैं देख रहा हूँ वो वहां पे बैठकर बंदा देख रहा है, और अपने आगे टेक्नीशियन तो इतने सारे होते ही है, बस उसको थोड़ा भी डायरेक्शन दे दो ना, वो काम कर लेगा। बस वो दिखाएगा, एक काम कर, ये इसको ऐसा ऐसा ठीक कर दे, वो कर दे। हाँ, आप बोलोगे हाँ व्हाट्सएप कॉल से भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है, या फिर अंडरग्राउंड है, या फिर ऑयल एंड गैस है, फार्मा है, तो अंदर ले जाना कुछ अलाउड नहीं है, उस वक्त क्या करोगे? So that time these solutions comes into the picture, and it helps a lot. जब अशोक जी आए थे FGCCI में, so that time he was saying like my machineries are like imported from China. ये ऐसा solution मैं लगाऊंगा तो भाई मेरा तो काम ही अच्छा हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि चाइना से एक सेल्स इंजीनियर को, मतलब इंजीनियर बंदे को बुलाकर काम कराकर टेक्निकल बंदों को आने जाने में कितना खर्चा होता है, they know it in a very better way. So that time he said like this. And remote customer expert support वो मैंने बोल दिया अभी. And then comes the compliance management. ये मोरबी का है. अब टाइल comes from various rates, अलग अलग रेट के होते हैं। एक भी बॉक्स अगर ज्यादा गया, कम गया तो हमको कस्टमर बोल देते हैं खुद से, ज्यादा गया तो भगवान ने दिया। So like kind of things is like the accurate counting होना चाहिए। ये एक सीन हो गया। Second one is like the whether my workers are wearing PPE kit or not, वो एक है। कोई एरिया है जहाँ पर लोगों को जाना मना है, वो हम बता सकते हैं। इस रूम में कितने लोग बैठे हैं, वो बता सकता है। इस रूम में सिर्फ 5 लोग चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं चाहिए, वो भी बताएगा। ज्यादा हुए तो बताएगा, कम हुआ तो भी बताएगा। आपका एक मशीन है जिसमें 24/7 उसको आदमी चाहिए, वहां पे आदमी नहीं है, आपको तुरंत बताएगा। That kind of solution this is like. This is called video analytics. तो this is like the basic कैमरा होता है, उसको AI डालते हैं, उसको थोड़ा शाना बनाते हैं। सिर्फ रिकॉर्ड करके तू क्या करेगा, तुझको तू और ज्यादा काम करना चाहिए। राइट, रिकॉर्ड करके क्या करेगा, मैं देख के क्या करूँ, इसको बता, मुझे कुछ तो चाहिए इससे, तो वो AI काम करता है। ये सॉफ्टवेयर का खेल है। तो सप्लाई चेन भी सॉ दिस। तो कैसे लगे आपको सॉल्यूशंस? आर दे गुड? भले हमको इम्प्लीमेंट नहीं करना, पर फिर भी देखने को तो वाह, ये ऐसा सीन आना चाहिए। सो दैट इज लाइक दिस। एंड ये जो सारे जो सॉल्यूशंस है, ये काम करते हैं डेटा पर। ओके, ये सारा सीन डेटा पे काम करता है। तो डेटा एक बार आपने कैप्चर कर लिया, ये लॉगबुक सेंसर डिवाइसेस से एक बार प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस होने के बाद ये रूट कॉज आप डायग्नोस करके निकाल सकते हैं, देन इंटरवेंशन मतलब करेक्टिव एक्शंस आप ले सकते हैं। सो दिस इज लाइक अ टेक्निकल दिस एंड कामत सर,
मैं ये जो आगे का फोटोग्राफ अपना वीडियो था उसमें से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे अपने गेट का वीडियोग्राफी लिया, यस आवर एंटरप्रेन्योर्स वुड लाइक टू नो कि भाई ये जो आपने फोटोग्राफी किया है, वीडियो किया है, उससे क्या बचत हो सकती है, क्या इफेक्ट हो सकता है और कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उसके लिए कुछ कहिए ना। मतलब इन शॉर्ट आपको मतलब पूछ मतलब क्या जैसे अभी ये जो बंदा कुछ सामान उठा के रख रहा है, उसकी आपने फोटोग्राफी की, तो एआई के जरिए वो कैसे अभी हेल्पफुल होगा? अभी ये जो है बॉक्स ये उठा के लोड कर रहा है। दिस इज द डिस्पैच सेक्शन ऑफ अ सिरेमिक प्लांट, जिसमें मेरे डिस्पैच कितने बॉक्सेस हो रहे हैं वो काउंट कर रहा है। अब इट इज इजियर हियर बिकॉज दे आर जस्ट बॉक्सेस, फिर भी मुझे एक आदमी रखना होता है यहाँ पे, वो पूरा काउंट करने वाला है। ओके, इसके अलावा अगर आप पाइप मैन्युफैक्चर हो, पीवीसी पाइप, अब पीवीसी पाइप में क्या होता है कि एक बड़ा पाइप होता है, उसमें छोटे 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 पाइप डालते हैं। ओके, अब उस वक्त क्या करोगे आप, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अभी ये एक वीडियो एनालिटिक्स का एक ये वाला सीन हो गया, इसका पहला वाला जो है क्वालिटी चेक वाला, उसमें एक सीन था कि लाइक व्हाट वी गॉट इट, कि जो हैंगिंग ब्रिजेस होते हैं ना, ये अभी बंद हुआ है देखो अपनी गांधी नगर और हालोल हंसोल एयरपोर्ट रोड पर, तो जो वो रिंग आती है ना, उस पे एक नहीं दो नहीं 20 नहीं 90 होल्स होते हैं, 90 होल्स, एंड इट इंक्रीजेस, नंबर इंक्रीज हो जाता है। अब मैं एक होल को मैं चेक कर रहा हूँ, उसका गेज वगैरह, मैं ऐसा हो के भी ऐसा हो जाऊंगा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कहाँ पर था। ये वीडियो के जरिए हम कर सकते। यस, I would like to add some use cases in this case. What is that? We have already implemented this in our classroom. One in RSWM, one in Wellspun. In both the cases, both are textile companies, if you are aware of. तो RSWM वाले का ये प्रॉब्लम था कि मैंने कितना बॉक्सेस डालना है वो मुझे पता है, उसको केजी पता है, बराबर कौन सा लॉट जाएगा वो भी उसको उसमें प्रिस्क्राइब करके रखना पड़ता है। तो ये जो है आई मीन दिस इज उनका तो बहुत सिंपल, अभी भी उन्होंने वैनिला फ्लेवर थोड़ा दिखाया है, पर इसके साथ में आप RFID या बारकोड उसमें लगाते हो तो आपका एकदम प्रिसाइज हो जाता है कि आपने जो लॉट बोला था, जितना किलो बोला था, वो अंदर एंटर हो रहा है, उसका लाइव डेटा आ जाएगा, उसका सीधा जो आपका डिस्पैच का जो ऑर्डर है वो बन के आपके हाथ में आ जाएगा, आपको किसी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। बराबर, दूसरा जो ये कैमरा बेस्ड बोल रहे हैं वो हमने वेल्सपन में इम्प्लीमेंट करवाया था। इट वाज लाइक कि एक तो ये जो दिखा रहा है दरवाजे वाला, तो उसमें एक थेफ्ट का केस हमने पकड़ा था, क्योंकि हमने वो ऐसे लगा के रखे थे, कुछ भी चीज बाहर कोई फेंकता है रात में खास करके, तो वो वहां से अपने को अलर्ट आ जाता है कि भाई यहाँ से ऑटोमेटिक कैमरा भी एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटा चालू रखना है, जैसे ह्यूमन कोई भी मूवमेंट हुआ मोशन सेंसर से वो एक्टिवेट हो जाएगा, अपने आप उसको बता देगा कि ओके यहाँ से एक मूवमेंट हुई है, सिक्योरिटी में अलर्ट जाएगा, सिक्योरिटी वाला वो बंदे को विद इन 5-10 मिनट्स हाफ एन आवर इट विल बी कैच। सेकंड केस ये वाला जो है अभी तो बहुत जगह पे लग गया है कि आपका एंट्री या एग्जिट जो भी है, आपका हाजिरी का जो सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम, वो आप इससे कर सकते हो, ये बहुत जगह पे लगा हुआ है। सेम जो इन्होंने PPE किट वाला बताया, दैट इज आल्सो पॉसिबल, वो भी बहुत सारी जगह पे लगा हुआ है। तो इट इज आई मीन जस्ट यूज केसेस फॉर एग्जैक्टली। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जितना बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता है, जितना प्रोडक्ट्स का वैल्यू बढ़ता है, उतना ये सब चीजें प्रॉब्लम हो जाते रहते हैं। एक भी बॉक्स ज्यादा गया प्रॉब्लम, भले हम सब कुछ कर रहे हैं बट इट इज अगेन लॉस फॉर मी, मुझे 100% एक्यूरेट चाहिए। तो डिस्पैच ऑर्डर हो गया मेरा, जैसे भर गया ट्रक, अंदर कौन सा माल जाना चाहिए वो भी बता देगा विद द यूज ऑफ QR कोड एंड बारकोड कि ये कस्टमर को ये नहीं चाहिए, आपने गलत प्रोडक्ट स्कैन कर दिया।
during the dispatch itself you are like putting barcodes on that so that the product like XYZ customer need this product PQR. तो ये प्रोडक्ट का जब स्कैनिंग होगा तभी ये ऊपर होने वाला है। तो उसका को स्कैन करके मैं चलाऊंगा तो वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, वही के वही अलर्ट जनरेट करेगा। लाइक टी 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 कुछ भी हम कर सकते हो, लाइक अलार्म बजिंग कुछ भी हम ले सकते हो। सो दीज आर लाइक द सॉल्यूशंस एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो सबको अच्छा लगता है एंड देयर शुड बी अ सॉल्यूशन एज वेल कि एडॉप्ट कैसा करते हैं। तो we usually recommend to have this step by step approach। पहले करंट असेसमेंट करना है और अपने इंडस्ट्री का जो टॉप लीडर है या फिर टॉप में जो प्लेयर है उन्होंने कितना डिजिटलाइज किया है, फॉलो देम। उसके आगे नहीं जा सकते हम और उतना हमारा मैच्योरिटी है। सो उसके अकॉर्डिंग मेरा करंट स्टेटस क्या है वो हम करते हैं और आइडेंटिफाई करना कि मेरे कौन से ऐसे मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस है जो कि अभी मैं फोकस करना चाहता हूँ और जहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा मगजमारी होता है, वो वैसा काइंड ऑफ थिंग हमें आइडेंटिफाई करना है एंड देन प्रायोरिटाइजिंग द फोकस एरियाज। ये सब चीजें करके हम फोकस करना एंड देन एक वी यूजुअली रिकमेंड कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ERP होना चाहिए, नहीं रहा तो भी चलेगा पर होना गुड टू हैव। लाइक ऑटोमेटेड या फिर ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर दो, स्मार्ट मशीनरीज ले लो, PLC से कनेक्टेड वाले मशीनरीज लो, नहीं रहा तो भी चल जाएगा बट गुड टू हैव। देन कम्स POC ऑफ एडवांस सॉल्यूशंस। अब POC मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, सीधा सिंपल बताओ छोटे से खाने का। तो ये छोटे से कैसा खाना है, मेरा अगर 20 मशीनरीज है, 20 के ऊपर कभी भी काम नहीं करने का, पहले 3-4 पे काम करने का, उसका ROI असेसमेंट करने का, डिजायर्ड आउटकम्स जो है वो हमारे मुझे जो चाहिए वही वो दे रहा है कि नहीं, आउटपुट वही मिल रहा है कि नहीं, वो पूरा 2-3 महीने उसमें काम करने का, गेन द कॉन्फिडेंस। एक बार ये 3-4 मशीन पर जब काम हो जाता है देन स्केल अप। पहले 20 के ऊपर नहीं काम करना। लाइक वे के यूज के साथ इतना मतलब हम सुन के पागल हो गए कि दैट वाज अगेन फ्रॉम टेक्निकल टेक्सटाइल ओनली। वो IoT सॉल्यूशन लगा है ओके और वो सही है कि नहीं है बोल के एक दूसरे बंदे को लगा है, मतलब इट्स लाइक अ कंप्लीट मतलब सर मतलब काम कम करने के लिए हमने ये सॉल्यूशन डाल दिया और काम तो उल्टा बढ़ गया है हमारा। So that is like not providing a good solution। वो एक प्रॉब्लम था वहाँ पे। The solution was not like desired outcome as कैसे आ जाएगा यार, तुम पूरा का पूरा फैक्ट्री IoT कर दिया एकदम, क्या करना क्या वो पूरा डेटा लेकर, वो भी परेशान एंड इन्वेस्टमेंट तो कर लिया। So that is again the challenge and then scale up। और जब स्केल जब करेंगे तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक टियर मॉडल बोल के है, तो यूजुअली वी रिकमेंड दिस कि टियर मॉडल क्या होता है कि आज का स्टेट क्या है और करंट अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री 4.0 के लिए कितना हो सकता है मेरी कंपनी में, ये हमको एनालाइज करना है। Then comes impact to bottom line। जो भी मेरे एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है, कॉस्ट मतलब ये यार ये सॉल्व हो गया तो मेरा बहुत काम आसान हो जाएगा, लाइक दैट काइंड ऑफ एरियाज, उस पे फोकस करने का, वहां पे करने का, क्योंकि वहां पे रिजल्ट्स आना चालू हो गया तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाला है। देयर इज द एंड देन E इज लाइक एसेंशियल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कि किसी को ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्वालिटी हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकता है या फिर ऑपरेशनल मतलब मेरा ब्रेकडाउन कम होना है, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई करने का एंड देन रेफरेंस टू द ब्रॉडर कम्युनिटी जो कि MSMEs करते हैं
या मैंने ये लगवा लिया, ये सॉल्व हो गया है, तो दूसरा भी बोलेगा यार कितना अच्छा है, मैं भी कर लूंगा. तो दैट टाइम we become a reference to the society and our community. So this is like the journey for the step by step approach what we say. ये केस स्टडी है डिजिटल अडॉप्शन के लिए. ये फिल्म मैन्युफैक्चरर है, तो ये मल्टी लेयर फिल्म्स बना देते हैं फॉर पैकेजिंग एप्लीकेशन. एंड यहाँ पे इन्होंने IoT सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया था टू कैलकुलेट OEE ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी. तो ये बिजनेस आउटकम ये आया था कि ये इनका रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड विजिबिलिटी दिख रहा था KPIs ऑन डैशबोर्ड, जिसमें कॉस्ट वर्सेस किलोग्राम दिख रहा था इनको. एंड जो भी एनोमलीज है उनको रियल टाइम अलर्ट्स मिल रहे थे. सो दिस इज द सॉल्यूशन केस स्टडी. Second one is like the case study for digital adoption in the areas. ये जो देख रहे हैं ना, this is the barrel, okay? ये barrel होता है fuel का. ये fuel का barrel है. तो इसका क्वालिटी चेक के लिए एक कैमरा लगाया था. ये दिस इज अ कैमरा बेस्ड विजुअल सॉल्यूशन जो कि पूरा एनालाइज करके बता रहा था. तो एक ऐसा सीन भी था कि जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स लगे हुए थे, जो मिसिंग है वो हाईलाइट करके बता रहे थे. तो दिस इज लाइक द सॉल्यूशन. और ये कैसा था कि पर डे 1000 पार्ट इंस्पेक्टेड विद 0 फॉल्स पॉजिटिव विद आइडेंटिफिकेशन एस्पेक्ट. अब 1000 दिन का मुझको इंस्पेक्शन करना है, दैट इज अगेन बिग चैलेंज. So they were able to achieve this number. So again, this is like a good solution which really helps the MSMEs to solve their problems. और एक है ये फैब्रिक का है, तो कुछ भी ऐसा डिफेक्टेड होता है ना, वो बता देगा. तो ये डिफेक्टेड पार्ट है, ये बता देगा आपको. इसका एक्यूरेसी वाज अटेंड अराउंड 97 to 99%. तो इसमें ये था कि प्रॉब्लम की फैब्रिक फॉल्ट्स टू बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग कटिंग. गुड फैब्रिक वेस्टेड ड्यू टू लेट एक्शन, मैन्युअल इंस्पेक्शन, सो स्लो एरर prone, एंड मिस्ड डिफेक्ट कॉज शॉर्टफॉल एंड बैग रिजेक्शंस. तो ये सब प्रॉब्लम्स थे. तो इन्होंने ये FIBC बैग के लिए solution दिया था ये. So this is Robro का solution है. This तो एक हम ये वीडियो देखते हैं. हम लोग का जो मेजर प्रॉब्लम था कि हमें डेटा ऑन टाइम नहीं मिल रहा था, हमारा सॉल्यूशन ऑन टाइम नहीं आ रहा था. ये सारी चीजें ऐसी थी जो एक दिन के बाद पता चलने के कारण काफी लॉस क्रिएट कर. कारण हम लोग को पहले ही वर्कआउट करता है पेपर में हमारे लोग के लिए प्रॉपर करे कल्ला के पता है वो. मैंने ग्राम में पेपर ना इससे सका था. मैं जब टाइम नहीं होगा तो मैं इससे ही हम लोग पेपर और मैनेजमेंट थ्रू इनिशिएटिव में वर्क डिजिटलाइज प्रोसेसेस करिए, डिजिटलाइजेशन करिए. This European integrated bond functioning space of the problem industry was regarding the transformation of the software. We started with chemical reports, yes, then that quality of care was awareness, and then with the preventive corrective maintenance as well as asset tracking. ये सिस्टम के कारण हमारा काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है. डेटा कैप्चरिंग पेपरलेस शॉप तो हुआ है, लेकिन ऑन टाइम जो डेटा मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो गया. एक्शन जो है एक्शन की शॉप में से एक काम करती है, वो लोगों का ऑन टाइम एक्शन शुरू हो गया. इसके कारण काफी बेनिफिट हुआ है प्रोडक्टिविटी पर. So this is use case for Harsha Engineering. और एक है. Join us as we take you on a journey to the heart of Haryana. In the bustling town of Yamunanagar, there is an engineering manufacturing company called Oriental Engineering, where innovation and growth are taking center stage. हमारा चैलेंज था कि हमें पता था हमें क्या मिला था और हमें पता था कि क्या बन गया. तो बीच में सोच के साथ क्या हुआ था तो हमें पता है. तो वो ट्रांसपेरेंसी जो हमें चाहिए थी वो अब
इस सोल्यूशन से आती है। बिकॉज अब आज से जॉब लेवल अब 2 दिन बताएगा कि मैंने पहले तो पेपर पे था, आपने पता नहीं था कि अगर 400 मिनट का काम है उसमें 300 मिनट लिखा है, पहले पता नहीं था। पर अब जैसे कि फीडबैक लूप आना शुरू होगा, थियोरेटिकल जो डिजाइन लूप आप एक्सपीरियंस करेगा और एक्चुअल प्रोडक्शन करेगा, उसमें कोड में दिन में कितने घंटे एक्चुअली है, शिफ्ट कितना है, वो HR से करेक्ट होगा, आपको वैलिडेशन आ सकता है। We are definitely seeing an increase in our transparency and we are seeing reporting being verified. So we're very optimistic. I think this is a great move forward for us. We're definitely moving in the right direction. And then, So this is like typical MSMEs के ये use cases है, success stories मैंने अभी हाईलाइट किए। तो of course गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ तो हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। So there is a scheme running by the state government. So this is like say assistance, like whatever is available is 65% of the capital expenditure related to ICT facilities. मतलब सेविंग 5 लाख तक का है और हार्डवेयर पर है। आप कोई भी स्मार्ट सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करते हो तो उसका जो भी हार्डवेयर कॉस्ट है उसका 65% आपको मिलने वाला है। फॉर सॉफ्टवेयर साइड देयर इज नो असिस्टेंस प्रोवाइडेड। और ये स्कीम चालू हुआ था 5 अक्टूबर 2022 तक से और 4 अक्टूबर 2027 तक ये स्कीम है। तो if at all like you are looking to adopt any kind of solution, this is the scheme which is available and इसके लिए आपको नियरेस्ट DIC से मतलब संपर्क करना चाहिए। एंड मिस्टर जिगर दवे sir, he sits in DIC Surat office, so he would be the right person to guide you on this. और ये स्कीम में आप 3 एप्लीकेशन ले सकते हो एक साल में, एक ही बार। तो 3 एप्लीकेशन इसमें कंबाइन करके अप टू 5 लाख तक का ले सकते हो। तो जैसे कि सब कुछ बताया, ये तो हमारे बारे में भी देख लीजिए थोड़ा। ये हमारा COE like we have signed this MOU with DST GIL and recently this AI Center of Excellence was inaugurated by Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai Patel in January 2025 in GIFT City. So what we do is like we encourage the MSMEs, large enterprises, government. तो पूरा स्टेट में ये अभियान चालू है कि टेक एडॉप्शन होना चाहिए और इसके लिए हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। और अगर कोई आप में से स्टार्टअप हो तो उसके लिए भी हम एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स कुछ रन करते हैं अपनी तरफ से, तो वहाँ पर भी सपोर्ट मिलता है। वी आर क्रिएटिंग दिस कोवर्किंग स्पेस एज वेल, तो वहाँ पर भी आप बैठकर काम कर सकते हो with very nominal fees. So that is the case. And अगर आप कोई solution create करें, co-creation के लिए हम कैसा provide करते हैं? Like if you are like I said, this AI Center of Excellence is an initiative of Ministry of IT Electronics, DST, GIL in collaboration with NASSCOM and Microsoft. तो आप किसी भी गवर्नमेंट का अगर यूज केस हमारे पास आ जाता है, आपको डायरेक्ट वो उसके ऊपर काम करने को मिलेगा और वो जो सॉल्यूशन क्रिएट करने वाले हो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो माइक्रोसॉफ्ट आपको सपोर्ट करने वाला है। सो दिस इज द केस। ये AI लिटरेसी और ट्रेनिंग वर्कशॉप जैसे हम कई जगह जाके करते हैं। इफ एनी वन ऑफ यू लाइक आर कैटलिस्ट या फिर आप किसी एसोसिएशन चेंबर से जुड़े हैं, अगर आपके यहाँ पर भी अगर ऐसा करना हो तो बता दीजिए। वी आर ओपन टू होस्ट दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप देयर एज वेल। एंड हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर स्टार्टअप्स एंड एक एक्सपीरियंस जोन हमने क्रिएट किया जहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस आपने देखे ये आप लाइवली वहाँ पे डेमो देख सकते हो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। तो एक इतना बड़ा एक रूम है जिसमें कई सारे सॉल्यूशंस लगे हुए हैं, आप लाइव डेमो देख सकते हो AI के। कुछ हेल्थ केयर के भी अच्छे सॉल्यूशंस है। आप डिजिटल डॉक्टर के साथ बात करोगे
आपको सर में दर्द है वो पूरा पूछ लेगा और आपको बताएगा, बस प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा क्योंकि इट्स नॉट अलाउड इन इंडिया, अदरवाइज दैट वुड बी आल्सो done by this. So we have been working in healthcare, manufacturing, agriculture, logistics, SMEs, citizen-centric services, PSUs, etc. And तो ये इनिशिएटिव AICVE का आप कैसा लाभ उठा सकते हो? So get hand holding support if you are facing any kind of operational challenges. Tell us. ये आप स्कैन करोगे, इसका कॉपी मेरे पास आएगा, मैं आपको कॉल करूंगा, मेरा नाम सिद्धार्थ कामत है, ये मैं हर जगह बताता हूँ, कॉल आएगा, तो कॉल पर चेक करना सिद्धार्थ कामत, अगर आप रिसीव नहीं किए तो वापस से कॉल बैक करना, इन केस यू हैव रजिस्टर्ड एंड इफ यू मिस कॉल्स, तो टेल अस लाइक योर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, एंड अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर या स्टार्टअप हो यहाँ पे, आप आपका सॉल्यूशंस भी बता दो हमें कि आप क्या प्रोवाइड करते हो, ताकि हम वो आगे ले जाएंगे। एंड लाइक कैटलिस्ट व्हाट आई सेड कि अगर आप में से कोई भी किसी भी एसोसिएशन चेंबर से जुड़े हो तो वो भी बता दीजिए। एंड विद दिस एक मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, तो जिसमें सारे जो एमएसएमईज है तो उनको अपडेट्स आते रहते हैं, जो कि मेरे पास नया कुछ आया तो मैं उसमें फॉरवर्ड करते रहता हूँ। So I request you to join this group as well. So with this, I conclude my presentation. Thank you for patiently hearing, and I am open for answering your queries. All are satisfied with your lecture. Quick Yes. questions, any? Yes, please. ब्रिलियंट सर, जैसे आपने बताया कि आप हैंड होल्डिंग में हेल्प करते हैं, तो थोड़ा सा उसके और बता सकते हैं जैसे? ओके, प्रोसेस कैसा होता है? ये QR कोड है, ये आप स्कैन करोगे, इसमें फॉर्म खुलेगा जिसमें आपके ऑपरेशनल चैलेंजेस बताना है। Not necessary to write it. There are like various options. You need to click it. If at all like you don't find your solution which is matching to those options, you write us. ये write करने के बाद ये पूरा मेरे पास आएगा, and I'll be analyzing like what is your problem by connecting you with one-on-one. हम one-on-one connect करेंगे through video call, and हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आप क्या इंडस्ट्री कौन सा है, आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो, बेसिकली एक ब्रीफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, एंड विल बी मोर फोकसिंग ऑन कि आपके चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं। पता चला मेरा हाथ में दर्द है, पर हाथ में दर्द हाथ क्यों हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दर्द इज लाइक वो तो कायम रहने ही वाला है, लाइक समहाउ इट इज लाइक सॉल्व करना है, पर क्यों हो रहा है, इसका कारण कुछ और है क्या, वो हमको समझना है। सो फाइंडिंग द राइट रूट कॉज ये हम करते हैं, एंड वंस वी फाइंड आउट वी प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो हाउ डू वी प्रोवाइड? अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली रोल आउट कर दूंगा, ये देख लीजिए, ये कर देता है, नॉट टू वेस्ट मच मोर टाइम। अगर आपका सॉल्यूशन काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब चैलेंज प्रॉब्लम इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड इट टेकिंग मी सम मोर एफर्ट्स, तो दैट टाइम लाइक वी जनरली टेक सम मोर टाइम, एक यूज केस फॉर्म होता है, एंड दैट टाइम वी आर लाइक वेरी सीरियस, ये भाई सच में आपको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। और मतलब क्या, मैं सब कुछ कर लूंगा और एक बार कोटेशन देख लेके आप भाग जाओगे। So that usually happens with the MSMEs. We make sure like how much serious you are, so that the government का जो भी काम है वो waste ना हो जाए। Even if you don't adopt, we would like to more understand your problem. कि adoption नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है? तो that would be considered, because इसका सारा रिपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को जाता है। मैं यहाँ पे आया हूँ, कितने लोग हैं, ये सारा DST और JIL को जाता है। तो
that serious we are working. So we usually take the serious business and serious calls. So that is my concern. And humble request कि आप बता दीजिए आपका जो भी problem है. Yeah. Kamath, I would like to add here, like, it's like come here and you display and you describe everything fine, but actually here people wants to know real case study and real problem and their actual solution. What you have given is a glimpse of the solution. So But okay. use case study, I mean, with name of company. I don't know whether you can take it or not, because again you have that, you have signed that contract, not NDA sort of thing. Okay. You probably may not take the name, but at least you can name department and its relevant solution what you have implemented. It will be more good. So this is the use case. ये कंपनी का नाम नहीं है, but this is the use case which we नहीं solution provided by Autobits. ये एक पैकेजिंग का मतलब solution दिया था इनको. ये हो गया. Second one is this is a car fuel tank manufacturing company. But my point is, I don't know how many of us is in this field. But हाँ अगर ये नहीं है तो जो मैंने जो solutions दिखाए थे वीडियोस वाले वो सारे के सारे implemented है. वो सारे के सारे implemented है. Again, MSME belongs to money, Yeah. What is implementation? Okay. ये जो solutions मैं बता रहा हूँ ना, ये इसका cost 50,000 से लेकर 5 लाख तक का. Actually, we have अभी कामत जी के साथ बैठे थे. Some 20 to 25 MSME entrepreneurs who are curious, desirous to install such system और जो उनका experience center है उसका अनुभव लेने के लिए we are planning in coming months जिसमें गांधीनगर उनकी जो ऑफिस है वहाँ पे जो ये सारे resources उपलब्ध हैं. It will be experience center plus a very innovative session for all of us. So those who are interested कि भाई किसी को ये चीज़ अपने MSME यूनिट में लागू करना चाहिए तो प्रैक्टिकल सेशन वहाँ जाके देखेंगे. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो उसमें रजिस्टर करिए तो 1 by 1 अपन वो सेशन कर पाएंगे. ओके. अभी कामत जी को मेरा 47 को वंदे भारत है वरना 45 minutes will be मुझे रात में सेशन निखिल जी के साथ घर पे जाना पड़ेगा फिर वरना मुझे. तो अगेन Kamath, ये presentation मिल सकता है? sorry. May I have this presentation? No, sorry. Soft copy नहीं मिलेगा? Sorry. हिमांशु जी से बात करके अपन उधर चले जाएंगे गांधीनगर, एक्सपीरियंस ही ले लेंगे पूरा, हिमांशु जी से बात करके डीप डाइव हो जाएगी. हिमांशु नहीं पता है मुझे. Yes, हिमांशु नहीं पता है मुझे. It's not shareable, sir. Sorry. Actually, we are bound to some of the rules. એટલો થોડી વાર મતલબ એટલો અહીંયા એક 5 મિનિટ તમારું કામ છે 5 જ મિનિટ સાહેબનો આભાર નથી. तो આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધારે સિદ્ધાર્થ कामत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप गांधीनगर से खास हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपकी जो परिकल्पनाएं थी उनको साकार करने की पूरे हम कोशिश करेंगे. धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया. 5 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ. सर जा रहे हैं. It was really a wonderful session, and I am like keeping a couple of flyers with you, like handout है, आप ले लीजिए. Due to time constraint, I am not able to stay here long. Okay, thank you. सर
अमित पिनारिया। મિત્રો ગુડ ઇવનિંગ વન્સ અગેન. સરસ મજાના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ પછી અમે આપણે એટલા માટે બેસાડ્યા છે કે નવી શરૂઆત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કરવા માટે જઈ રહી છે. કોરોના પહેલા એક કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર અહીંયા દર મહિનાના પહેલા અને ત્રીજા બુધવારે ચાલતું હતું. સ્વાભાવિક રીતે કોરોના આવ્યો એટલે એ પ્રવૃત્તિ બંધ પડી ગઈ. પછી કોઈને કોઈ કારણસર એ પ્રવૃત્તિ આગળ વધી નહીં શકી, પણ આ વર્ષે ફરી પાછી એ પ્રવૃત્તિને જીવંત કરવાનો નિર્ધાર અમે કર્યો છે. આ પ્રવૃત્તિ પાછળનું કારણ એ કે શહેર વધતું જાય છે, ઉદ્યોગો વધતા જાય છે. ઉદ્યોગો વધે એટલે સમસ્યાઓ વધે, પ્રશ્નો વધે. સ્ટાર્ટઅપ જે પહેલા હતું એના કરતાં બહુ જુદું સ્વરૂપ ઓલરેડી પકડાઈ ચૂક્યું છે અને એની અગત્યતા વધી ગઈ છે. પણ સ્ટાર્ટઅપને કક્ષે માર્ગદર્શન જોઈતું તો એ ક્યાં છે? તો આપણે એવું નક્કી કર્યું કે અલગ અલગ પ્રશ્નો સંદર્ભે એક કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર ચલાવવું દર બુધવારે પહેલા અને ત્રીજા બુધવારે સાંજે 4 થી 6. અને જેમને પણ પોતાના પ્રશ્નો હોય તે પ્રશ્નો એ લોકો અહીં પૂછી શકે, પોતાની સમસ્યાનું સમાધાન પ્રાપ્ત કરી શકે. તો મહેશભાઈ દેસાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. મહેશભાઈ સ્ટાર્ટઅપની આ જવાબદારી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સથી લે છે, અમારા પોતાના ગ્રુપ ચેરમેન છે. અમારા બીજા એક મિત્ર એટલે સીએ રાજીવ ખબાસિયાવાલા. તમને લોન અને સબસિડીના પ્રશ્નો નડતા હોય, સબસિડીઓ સરકાર ડિક્લેર કરતી હોય છે, પણ એને ફાઇલ મુકાય કે ફાઇલ કઈ રીતે મૂકવી, એ મૂક્યા પછી એનું ફોલોઅપ કરવું, કોઈ ભૂલ રહી જાય તો એને પાછું કેવી રીતે રિપુટ અપ કરવું. લોન સંદર્ભે લોન કહેવાતું હોય છે કે બહુ ઇઝીલી અવેલેબલ છે, પણ એ સામાન્ય માણસને ઇઝીલી અવેલેબલ નથી હોતી, મોટા માણસને ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. એના કયા પ્રશ્નો છે? હવે એના માટે સીએ રાજીવ કબાસેવાલા ઉપસ્થિત છે. રાજીવભાઈ એ સંદર્ભે માર્ગદર્શન આપશે. સીએ મનીષભાઈ બજરંગ, એમએસએમઈ એટલે માઇક્રો સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, જેને માટે અત્યારે આપણે સમજણ કેળવી. પણ એમએસએમઈ માં અત્યારે 45 દિવસના પેમેન્ટની સમસ્યા સૌથી વધારે છે. આ ઉપરાંત અનેક વેપારીઓ સાથે જ્યારે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય ત્યારે એનું સમાધાન શું અને નહીં પ્રાપ્ત થાય તો શું કરવું, એનું માર્ગદર્શન સીએ મનીષભાઈ બચન આપણને આપશે. તેઓ પણ અમારી ચેમ્બરની મેનેજિંગ કમિટી સાથે સંકળાયેલા છે. અજયભાઈ મહેતા એડવોકેટ છે અને રેવન્યુ ક્લિનિક એટલે જમીનના પ્રશ્નો. તમે એડવોકેટ પાસે જાઓ અને હજારો રૂપિયા ખર્ચવા પડે એવું બને, પણ એ નહીં જવું હોય તો તમારો પ્રશ્ન સીધે સીધો અહીં જ સમાપ્ત થઈ જતો હોય તો એનાથી વધારે સારી વાત શું હોઈ શકે? તેઓ અમારી લો કમિટીના ચેરમેન છે એટલે એડવોકેટ અજયભાઈ મહેતાનું હું સ્વાગત કરું છું. અત્યાર સુધીમાં ચેમ્બરમાંથી 600 વિદ્યાર્થીઓને અમે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ માટે પ્રમોટ કર્યા છે. એમાંથી 100 જેટલા મિત્રો એક્સપોર્ટ કરતા થઈ ગયા છે. એ લોકો કેટલું એક્સપોર્ટ કરે છે તેનો આંકડો કદાચ અમારી પાસે ન હોય, પણ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ નિયમિત અંતરે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટના ક્લાસ ચલાવે છે. અને એના જે જાણકાર વ્યક્તિત્વ છે એટલે તે છે અમિતભાઈ મુલાની. અમિતભાઈ મુલાની તમને એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટમાં પડતી તકલીફો, એના કાયદાઓની સમજણ આ ક્લિનિકમાં આપશે. હું મજાકમાં કહેતો છું, આ બધા ક્લિનિક છે, રેવન્યુ ક્લિનિક, એમએસએમઈ ક્લિનિક, સ્ટાર્ટઅપ ક્લિનિક, અને આ બધા એના ડોક્ટર. અને અમે એ આખી જે રેમેડી છે એના કાં તો કમ્પાઉન્ડરની ભૂમિકા હોઈએ, કાં તો દવા વેચતો હોઈએ, તેવી રીતની અમારી ભૂમિકા છે. તો આ સમજણ આપવા માટે અમે તમને અહીં બેસાડે. આ વાતનો તમે થોડો પ્રચાર કરજો અને તમે સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા, સૌનું સ્વાગત છે. હું એક પછી બધા જ મહેમાનોને હું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશ અને પછી આપણે અહીંથી છૂટા પડીશું. સૌથી પહેલા અમિતભાઈ મુલાની.
એની પોલિટિક્સ એક મિત્રને કોઈ માર્ગદર્શન અહીંયા રહેવાનું મને અંદર કોઈ અત્યારે બી આ લોકો 5 મિનિટ માટે ઉપલબ્ધ છે જેને કોઈ સમજ હોય તો આ પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટ તો લઈને જજો. થેન્ક યુ મનીષભાઈ. Great job. Rajiv Kapas. So thank you Viren, thank you Ankita, thank you Rachna, and solo ખૂબ ખૂબ આભાર.